Good morning dear student, how are you? I hope you all are well. Today we are going to start our subsequent part of living world. Dear student, in the previous part we have already learned what is growth, okay, and why the food is necessary for the growth of tree. Okay, that is all was the characteristic of living things. Now we are going to learn the further what are the else or what are the remaining parts of the characteristic of living world. In that, today we will learn the first one, that is respiration. Second one, excretion. Third one, the responsiveness to the stimuli and the movement. And fourth one, we will learn here reproduction. So let us start our topic with respiration. For that, we will do a activity. First, take your hand near to your nose. What do you feel? You will feel that your nose release some air. Okay. So now in that there is two things. Our nose have two parts, and from the first part we are taking the oxygen from the atmosphere, and from the second part we are releasing the carbon dioxide which is generated inside our body. So simultaneously these two processes are known as respiration. Okay, so let us see what is given in your textbook. First one, the living things need oxygen in order to live. Okay, we know that the oxygen is very much necessary for the survival of living world. If there is an absence of oxygen, no one can survive, including us. Okay, so from the atmosphere we are taking the oxygen, and it is very much necessary for our survival. Okay, we cannot live more than one couple of seconds, couple of minutes without oxygen. Okay, so first thing, the living things need oxygen in order to live. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the use of oxygen is called respiration. Means we take oxygen from atmosphere inside our body. Okay, so that process is known as inhaling. From one nose we are inhaling the oxygen, and from our second nose we are exhaling the carbon dioxide which is formed in our body, and simultaneously these two process is known as respiration. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम एक नाक से क्या करते हैं, एक नाक के दो भाग है, एक भाग से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और वही जाकर के एयर प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो हम दूसरे नाक से क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं. तो जो ये प्रोसेस जब हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेल, और जब दूसरे नाक से हम छोड़ देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सहेल. एंड साइमल्टेनियसली जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. एंड यू नो दैट different animals have a different mode of respiration. For example, animals such as fish. Fish आप जानते हो fish कहाँ से ऑक्सीजन डिराइव करती है, fish के बॉडी पार्ट में, यानी उनके हेड के नीचे गिल होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं. तो उससे वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं. उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि माउस, स्नैक हो गया. स्नैक क्या होता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो अपने स्किन से वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है. उसी प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स है, वी डू रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. ओके, तो जो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का तरीका भी अलग अलग होता है. एंड सिमिलरली, ठीक है, ऑन द अदर हैंड द प्लांट्स रेस्पायर बाय द मींस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम एंड लीव्स. जो भी जैसे समझ जाइए ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट, ठीक है, आप समझ जाइए कंटिन्यू, ये जो है इसके लीव्स है, तो ये जो इनकी जो स्टेम्स होते हैं, इनके स्टेम्स में पोर्स होता है, और जो इनके लीव्स होते हैं इसमें भी पोर्स होते हैं, और यही दोनों के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटर वे, देन वी आर गोइंग टू टेक वन एक्टिविटी व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. So let us see your textbook. See, sorry, it is not an activity, it is just an example which is given in your textbook. See, the fish respire with the help of their gills. We, a human being, we respire with the help of nose. And how do the plants respire? With the help of pores. छोटे छोटे यहाँ पे छेद होते हैं, ठीक है. तो all this thing indicate that respiration is the characteristic of living things which is given in your textbook. Okay, so I hope कि you understand this topic.
Now come to your next topic, which is given excretion. Now what do we mean by excretion? Animals have a waste material which is collected in their body. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कलेक्ट होते रहते हैं, एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी टू थ्रो इट आउट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी से इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है. ओके, तो ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटा. और जिस प्रोसेस से हम इसको अपने बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. ओके, तो आप जान सकते हो कि जो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी एक्सक्रीशन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है. सी, waste substances are formed during the many processes that take place in the body of animals. हमारे एनिमल्स जो हम एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और इसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं. अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो. जो वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है या जो जनरेट होता है, हम या तो इसको यूरिन के माध्यम से या तो टॉयलेट के माध्यम से हम इसे एलिमिनेट करते हैं. लेकिन एक और तरीका है, हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होते हैं, हमारी स्किन भी क्या करती है, उससे अपने मतलब बॉडी से एलिमिनेट करती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. ओके, दिस आर कॉल्ड एक्सक्रीटा. तो जो ये वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं ना, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटा, एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और वो प्रोसेस मतलब चाहे हम किसी भी वे से बोल सकते हैं, जिस भी वे से हम अपने बॉडी से एक्सक्रीटा को बाहर करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. एंड एनिमल्स टू हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, हमारे भी क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं जहाँ से हम इस सारे वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करते हैं बॉडी से. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑल्सो वेल, एंड फॉर दैट वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सी, यू हैव ऑब्जर्व दैट कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर जो सीजन आते हैं तो उसके पेड़ के जो सारे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं. उसका रीजन क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपने वेस्ट मटेरियल को अपने मतलब लीव्स जो होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं. वो उनके लूज पे जाकर के जमा होता है. ठीक है, और जब इनके एडवर्स मतलब जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है तो वो लोग मिला जुला के क्या करते हैं, अपने पत्ती को नीचे गिरा देते हैं. तो एक ये तरीका है जिससे वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं. और दूसरा, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में एक और एक्टिविटी दिया गया है. आप कोई भी एक प्लांट को ले लीजिए और उस प्लांट पे आप जैसा है चार्ट में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे उसे प्लास्टिक से उसको अच्छे से कवर कर दीजिए. और आप अगर उसको 6-7 घंटे के बाद ऑब्जर्व करोगे ना तो उस प्लास्टिक के अंदर पानी के कुछ ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाएंगे. तो इससे क्या मालूम पड़ा, ये जो वेस्ट मटेरियल ही था उनका. ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से वो सूख जाता है, हमें पता नहीं चलता है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हवा से कांटेक्ट नहीं होने की वजह से वो ड्रॉपलेट वैसे ही मौजूद हुए. तो इससे ये साबित होता है कि एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसा हमने प्लांट के केस में ऑब्जर्व किया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली एट द मोमेंट. सपोज यू आर गोइंग समवेयर, बराबर, और अचानक आपके पैर में कांटा छूट गया, तो आपका रिस्पॉन्स कैसे होता है, मुंह से आ की आवाज निकलती है. ठीक है, तो कोई चीज सडनली होती है और हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कभी कभार आप कहीं बैठते हो ना तो अचानक उड़ जाते हो, बोलते यार यहाँ तो पानी गिरा हुआ था, मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया. आपके दिमाग तक तुरंत से सिग्नल पहुंच जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिमाग तक सिग्नल पहुंचने से पहले हम एक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एट द मोमेंट. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी अगर आप बर्तन घर पे छूते हो और गर्म होता है तो फटाक से छोड़ने के बाद आपको 1 मिनट बाद ध्यान में आता है या 1 सेकंड बाद ध्यान में आता है ये गर्म था. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली एंड द मूवमेंट. एंड लिविंग थिंग्स एक्ट इन द वेरियस वे व्हेन द रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली. जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो काउ सेट. अगर आप किसी गौशाला में चले जाओ और अगर वो गाय से आपको नहीं पहचानती है, आपके घुसते वो लोग चिल्लाना चालू कर देगी. ठीक है, कुछ लोग आपको सिंग भी मारने के लिए आगे आने लगेगी. तो दे आर रिस्पॉन्डिंग, वो आपको क्या कर रही है, मतलब आपको रिस्पॉन्सिवनेस कर रही है. अ पीपल प्लांटेड ऑन द कंट्री यार्ड, कोर्ट यार्ड. आपने देखा होगा कि कभी कभी आंगन में करेले के पौधे हो गए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है.
अगर हम वहाँ पे लकड़ी लगा देते हैं तो एक करेले का पौधे का जो क्रीपर होता है उसी को सपोर्ट उसी का लेते लेते ऊपर बढ़ने लगता है, यानी वो उसको क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है क्योंकि हमने उसको स्टिमुलेट किया है। उसी प्रकार से पॉटेड प्लांट प्लेस विंडो ग्रो टुवर्ड द सनलाइट, ये सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप अपने विंडो के पास इफ सपोज यू आर प्लेसिंग एनी प्लांट, ओके, तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ प्लांट दैट इज बेंट टुवर्ड द सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या होते हैं, वो झुकने लगते हैं, यानी वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, आपने स्टिमुली किया तो सामने से रिस्पॉन्ड कर, और उसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप देख सकते हो कि एक प्लांट होता है जिसका नाम है मिमोसा। आपको मैं इसको हिंदी में नाम बता देता हूँ, छुई मुई, ठीक है। अब छुई मुई आप जानते हो एक ऐसा प्लांट होता है कि अगर आप इसे छुओगे ना तो उसकी पत्ती क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। मीन्स यू आर जस्ट गिविंग हियर द स्टिमुली एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग इन द वे ऑफ फोल्डिंग देयर लीव्स, ओके, दैट इज द बेटर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now coming to our last part of today, reproduction. Reproduction means what? Means generating an animal like ourselves. Or you can also say in another word, the living things generate a new living things like themselves. कि जितने भी जो living things होते हैं वो बिल्कुल अपने जैसे ही एक नए living things को जन्म देते हैं. And that topic, sorry, this is known as reproduction. देखो, living things produce other living things like themselves. मतलब कुछ ऐसे मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं जो बिल्कुल अपने जैसे ही नए लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं. एंड वे ऑफ गिविंग बर्थ इज, मतलब यू नो वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गिविंग अ बर्थ. आइदर दे ले एग्स और दे गिव अ डायरेक्ट बर्थ टू द न्यूबॉर्न. या तो वो अंडे देते हैं और या तो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग like itself is called reproduction or procreation. मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने जैसे एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं या तो प्रोक्रिएशन बोलते हैं. एंड फॉर दैट ऑल्सो एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे बर्ड्स ले एग्स. पहले तो वो अंडे देती है और अंडे से क्या होते हैं, उनके जैसे बच्चे जन्म लेते हैं. आप देख सकते हो मेयर एंड हर फॉल, जैसे घोड़ी है इसका बच्चा जो होगा फॉल बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देगा. आप देखते हो रोज कटिंग में बडिंग से होता है, अगर आप कटिंग करोगे तो वहां से एक नया पौधा जनरेट होता है, यानी रोज वहां से जनरेट होता है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए बकरी है तो बकरी का बच्चा भी बिल्कुल उसकी तरह ही होगा, कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. तो ये सारी बातें इंडिकेट करती है क्या, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन भी क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वी हैव टुडे लर्न व्हाट respiration, excretion, responsibility, stimuli and the movement, and finally we have learned here reproduction. And there is many more topics remaining in this chapter. We will see later. So for today only that much. Okay, so we will meet in the next video. So for today, thank you very much.